So what are the important point in diuretics? In diuretics, the important point is, first, what are the site of action where the diuretics are acting? So in diuretics, we will discuss all the diuretics over here, but remember, in hypertension the main diuretic is thiazide, right? But यहीं पे हम पूरा diuretics finish करेंगे. So in diuretics, first, where is the site of action? So diuretics site of action. Site of action. Site 1. What is site 1? Site 1 is proximal tubule, PCT. Site 2. In site 2 we have loop of Henle. Site 3. In site 3, that is DCT. And then site 4. In site 4 we have the collecting duct. So these are the sites, site 1, 2, 3, 4. Now which drug act on site 1? In site 1, carbonic anhydrase inhibitors are acting. In site 1, carbonic anhydrase inhibitors like acetazolamide. Site 2, loop of Henle. Which drug is acting on loop of Henle? In loop of Henle, loop diuretics. So याद रखना आसान है, loop of Henle, loop diuretics. So loop diuretics act over here. Exactly कहाँ पे act करती है भी बताएंगे कि loop of Henle पे भी कहाँ पे. Then distal tubule. In distal tubule the thiazides are acting. Thiazides. And then collecting duct. In collecting duct the potassium sparing diuretics. पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक. तो सबसे पहले तो साइट क्लियर हो गया कि कहाँ पे एक्ट कर रही है. देन व्हाट इज द मैकेनिज्म एग्जैक्टली? सो रिमेंबर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, हाउ दे आर एक्टिंग? दीज आर एक्टिंग वाया लॉस ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट in the urine. Why there is loss of sodium and bicarbonate in the urine? That is because of the carbonic anhydrase inhibitor. This enzyme is there and this enzyme is inhibited. ये enzyme inhibit कर दिया, sodium and bicarbonate loss हो गया in the urine. Loop diuretics. Loop diuretics are acting on thick part of ascending limb of loop of Henle, TAL. थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. और यहाँ पे इनका काम क्या है? दीज ड्रग्स आर इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट. इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, दैट इज लूप डाययूरेटिक्स. देन कम्स टू thiazides. Thiazides are acting on the early DCT. Early DCT. In early DCT, what is the role of thiazides? Thiazides are inhibiting the sodium chloride transport. Important है, बार बार क्वेश्चन आता है इस पे. लूप डायरेटिक सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, thiazide सोडियम क्लोराइड. And then potassium sparing diuretics. In potassium sparing diuretics we have the two. One is aldosterone antagonist. One is inhibiting the aldosterone receptor. So these are aldosterone antagonist. And the second is epithelial sodium channel. Epithelial sodium channel blockers. So these are the 4 diuretics. Site 1, Site 2, Site 3 and Site 4. So this is the important thing, right? So this is about the mechanism of these drugs, that how the diuretics are acting. तो याद रखना, Site 1 पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, Site 2 पे लूप, Site 3 पे thiazides and Site 4 पे पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स. एंड दिस इज द वे दैट दे आर एक्टिंग. बात करते हैं वन बाय वन. द फर्स्ट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सी ड्रग्स हैं? द ड्रग्स आर like acetazolamide,
एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, इनमें से अगर हम बात करें डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड की, डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड, these are topical, these are topically used, these are eye drops used in glaucoma patients. एसिटाजोलामाइड जो है that is oral and parenteral, oral and parenteral, ये हो गया. सो अगर आपको ओरली यूज करनी है तो वी हैव द एस्टाजोलामाइड टैबलेट, टॉपिकली यूज करना है डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, आई ड्रॉप्स. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द यूज ऑफ दीज ड्रग्स. कहाँ यूज करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर. सो वन बाय वन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, दीज आर यूज्ड इन द, बिकॉज एस्टाजोलामाइड की अगर हम बात करें, एस्टाजोलामाइड डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इट डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम कर रही है सो इट इज यूज्ड इन हेड इंजरी पेशेंट्स, इट कैन यूज्ड इन हेड इंजरी पेशेंट्स. देन सेकंड, इट कैन बी यूज्ड इन इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स और ब्रेन ट्यूमर्स, इन ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर है आपको आईसीपी कम करना है, वी कैन यूज. acute mountain sickness, acute mountain sickness, इंपॉर्टेंट ड्रग है, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर acute mountain sickness. ये हो गया बिकॉज इट डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर. देन सेकंड, in second, because it decrease the intraocular pressure, because it decrease the intraocular pressure, so it can be used in glaucoma, it can be used in glaucoma. अब कौन से ग्लूकोमा में यूज करते हैं? सो इट इज यूज्ड इन acute congestive glaucoma, acute congestive glaucoma. If the patient is having acute congestive glaucoma, the important drug is acetazolamide. The important drug is acetazolamide. Is the drug of choice. Important question. If not controlled by acetazolamide, then go with the mannitol. फिर हम mannitol यूज करेंगे. In acute mountain sickness also, it is the drug of choice. Very important question. Then comes to next, the third important. After this, it is having the anti-epileptic effect. It is having the anti-epileptic property. Because of anti-epileptic property, it can be used in the epilepsy. Especially, it is important for catamenial epilepsy. Catamenial epilepsy. It is the best drug for catamenial epilepsy. Again, it is the drug of choice. Catamenial epilepsy किसमें होगा? In the females during menstruation. Menstruation के टाइम पे जो एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है, that is called as catamenial epilepsy. There is some role of hormones, right? वो सब है. Then in kidney, what is the function in kidney? In kidney, one important function is it is causing sodium loss. Because of loss of sodium, it is diuretic. But because PCT पे एक्ट कर रहा है, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही चेंज करेगा, जो भी चेंज करेगा, अल्टीमेटली लूप ऑफ हेनले में जाके इट विल बी रिवर्स्ड. सो दैट्स वाई इट इज माइल्ड डायूरेटिक. बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड डायूरेटिक है, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर डायूरेटिक पर्पज, लेकिन बहुत माइल्ड इफेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. द सेकेंड इज it is also causing bicarbonate loss, and because of bicarbonate in the urine, it changing the urinary pH, it can cause the alkalinization of urine. और अगर यूरिन को एल्कलाइज कर सकता है
तो कहाँ यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट द एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग, टू ट्रीट द एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग। सो बिकॉज ये एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन कर रहा है तो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज टू ट्रीट द एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग, राइट, बिकॉज ऑफ द एल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन। नाउ कम्स टू what are the side effects? What are the side effect of acetazolamide like drugs? In side effect of acetazolamide like drug, the first important is because the structure, अगर केमिकल की बात करें so acetazolamide chemical is sulfonamide, so sulfa allergy is common, sulfa allergy, skin hypersensitivity reactions, right? So that is because of the sulfa allergy hypersensitivity reactions could be there, पहली चीज। The second is because it is causing sodium bicarbonate loss in the urine, so metabolic acidosis, बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है तो metabolic acidosis। Second, now because it can change the urinary pH, नॉर्मली यूरिन एसिडिक है, उसकी pH को चेंज कर रहा है, so increase the chances of renal stone formation, renal stones का रिस्क इंक्रीज कर रहा है, so renal stone formation, so sulfa allergy, metabolic acidosis, renal stone formation। now लीवर वाले पेशेंट्स में अगर हम बात करें, इंस्टेड ऑफ साइड इफेक्ट आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसका लीवर सिरोसिस। सो डोंट यूज दिस ड्रग इन द लीवर सिरोसिस बिकॉज पेशेंट आएगा आपके पास इडीमा में, सिरोटिक इडीमा। अब सिरोटिक इडीमा है उसमें इसको यूज नहीं करना है। द रीजन इज इन सिरोटिक इडीमा इफ यू यूज द एसिटाजोलामाइड इट डिक्रीज द अमोनिया लॉस, डिक्रीज द लॉस ऑफ अमोनिया। और अगर अमोनिया का लॉस कम हुआ सो इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ, सो अमोनिया कम यूटिलाइज हो रही है ब्लड से, यूरिया कम बन रहा है, अमोनिया कम यूटिलाइज हो रही है, तो ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ गया और वो ब्रेन में जा सकता है। तो इंक्रीज द अमोनिया लेवल कैन रीच टू ब्रेन, सो इंक्रीज्ड अमोनिया इन ब्लड, that ammonia can reach to brain and it can cause hepatic encephalopathy। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वाई एसिटाजोलामाइड नॉट यूज्ड इन लिवर सिरोसिस पेशेंट? द रीजन इज देयर इज रिस्क ऑफ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, इसलिए इसमें यूज नहीं करना है आपको। बाकी इडीमा में आप यूज कर सकते हो, डायूरेटिक इफेक्ट है बट माइल्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए एसिटाजोलामाइड के। अब बात करते हैं द नेक्स्ट लूप डायूरेटिक्स। द नेक्स्ट डायूरेटिक इज लूप डायूरेटिक्स। अब देखिए एसिटाजोलामाइड का हाइपरटेंशन में कोई खास रोल नहीं है, राइट। अब बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स। इन लूप डायूरेटिक्स व्हाट आर द ड्रग्स? In loop diuretics we have the furosemide, mechanism already हमने पढ़ लिया तो we are not going to repeat again and again। furosemide, toracemide, bumetanide, these are the currently used loop diuretic। बट अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो we had the ethacrenic acid, ethacrenic acid, marcellin। In past we have used this ethacrenic acid, marcellin। So we have used in past these diuretics, but currently we don't use these drugs. The reason is toxicity, marcellin nephrotoxicity, ethacrenic acid ototoxicity। So because of this, because these drugs are toxic, ethacrenic पे क्वेश्चन आ चुका है,
which loop diuretic is most ototoxic? So the loop diuretic which is most ototoxic is ethacrynic acid. Hearing loss रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस कर रहे हैं, उसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी है, हीरिंग लॉस है, बट रिवर्सिबल है, नर्व डैमेज नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट। सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस में नर्व डैमेज होकर अगर होगा तो इरिवर्सिबल होगा, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दे आर कोजिंग द इरिवर्सिबल हीरिंग लॉस, सो इट इज रिवर्सिबल। द ड्रग्स विच आर करंटली यूज्ड, उसमें आपके पास है फ्यूरासेमाइड, टोरासेमाइड, ब्यूमेटेनाइड। फ्यूरासेमाइड that is faster, so remember F for faster. Torasemide is longer, so remember T for tall, longer. Bumetanide is the potent. अगर फास्टर चाहिए तो फ्यूरासेमाइड यूज करिए, अगर लॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो टोरासेमाइड, और पोटेंट चाहिए तो ब्यूमेटेनाइड, और अगर हीरिंग लॉस चाहिए तो एथाक्रिनिक एसिड, राइट, वो चाहिए नहीं होगा। सो लूप डायरेटिक्स। अब बात करते हैं व्हाट आर द यूज ऑफ लूप डायरेटिक्स, कहाँ यूज कर सकते हैं लूप डायरेटिक्स का। सो इन लूप डायरेटिक्स यूज मैकेनिज्म वी हैव डिस्कस्ड। सो व्हाट आर द यूज ऑफ लूप डायरेटिक्स? सो वन बाय वन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लूप डायरेटिक, दैट इज बिकॉज दीज आर stronger, these are high sealing diuretic, these are stronger diuretic. So stronger high sealing diuretic, or you can say the high efficacy diuretic. High sealing effect और high sealing effect means high efficacy, इनका इफेक्ट काफी ऊपर आ सकता है, हम तो बहुत कम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है, सीलिंग लिमिट जो है उनकी बहुत ज्यादा है। सो हाई सीलिंग, और यू कैन से दे हैव द हाई एफिकेसी। तो हायर एफिकेसी डायरेटिक्स में अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्गर डायरेटिक्स की बात करें, तो वो है लूप डायरेटिक्स। और अगर हम कहें कि अगर कंपैरिजन करें थायजाइड से, तो आप बोल सकते हो कि दीज आर फास्टर एंड शॉर्टर देन द थायजाइड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर फास्टर एंड शॉर्टर देन द थायजाइड्स। तो कब थायजाइड यूज करना है, कब आपको ये यूज करना है, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये फास्ट है और शॉर्ट है। तो अगर आपको क्विक इफेक्ट चाहिए तो फिर ये बेटर है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ये बेटर है, अगर आपको लॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो थायजाइड्स बेटर है, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन द कंपैरिजन विद द थायजाइड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूज ऑफ दीज ड्रग्स। सो इन द यूज ऑफ लूप डायरेटिक्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज इज इट इज यूज्ड फॉर edema. The first important use, it is used for edema. So first is edema treatment. It is the best drug for relieving the edema. Why? Because it is stronger drug. So it is the best drug for this. The second important use of loop diuretic, because loop diuretics are faster, stronger. So they are used in the acute congestive heart failure, acute congestive heart failure, or you can say left ventricular failure. So in acute congestive or left ventricular failure, to relieve the congestion, loop diuretics are best. So this is very important. It is drug of choice in the congestive heart failure, or you can say left ventricular failure. Same for the edema, acute congestive heart failure. Then in acute congestive heart failure, definitely there is pulmonary edema. So in relieving the pulmonary edema, it is the drug of choice. Relieving the pulmonary edema, again it is the drug of choice, very important drug. Then can we use the loop diuretics for hypertension? They can be used. In hypertension, loop diuretics can be used, but only for emergency cases. In emergency hypertension we can use, and again it is not a choice of drug, right? Choice नहीं है, आप यूज कर रहे हैं इमरजेंसी में टू रिलीव द हाइपरटेंशन, टू रिलीव द कंजेशन, बट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है हाइपरटेंशन में, राइट। देन एक और इंपॉर्टेंट यूज है, लूप डायरेटिक्स आर इंपॉर्टेंट टू यूज सपोज कि पेशेंट हैज हैविंग हाइपर कैल्शियमिया, एंड लूप डायरेटिक्स का काम है कैल्शियम लॉस करना। सो इट इज यूज्ड इन एक्यूट हाइपर कैल्शियमिया ट्रीटमेंट,
in acute hypercalcemia treatment, it is the first choice drug. कैसे यूज करेंगे? With नॉर्मल सलाइन फ्लूइड, राइट. सो नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर दीजिए और नॉर्मल सलाइन के साथ आईवी फ्लूइड देने के साथ आप लूप डायरेटिक्स यूज करिए. तो उससे क्या होगा? इंक्रीज द कैल्शियम लॉस. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. इसमें भी ये बेस्ट है, राइट. इन दिस ऑल्सो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस. देन कम्स टू what are the side effect of loop diuretics. In the side effect of loop diuretics, अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें लूप डायरेटिक्स की, सो लूप डायरेटिक्स और थायजाइड्स के ऑलमोस्ट सेम साइड इफेक्ट है, बट यहीं पे हम डिस्कस करते हैं, वहां पे हम लिख देंगे कि रिपीट, राइट. सो इन द साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर डायरेटिक, सो देयर विल बी लॉस ऑफ सोडियम, देयर विल बी लॉस ऑफ पोटेशियम, there is loss of magnesium, there is loss of H plus. So now you can see that loop diuretics or diuretics, they are mainly causing alkalosis. So they are causing alkalosis. अब देखिए acetazolamide was causing acidosis, it is causing alkalosis. Mostly diuretics means loop or thiazides. अगर simply I say diuretics use करना है तो I think about the loop and thiazides. So mostly diuretics are causing alkalosis. Diuretics are causing hypokalemia. Diuretics are causing hypokalemia. Diuretics are causing hypomagnesemia. Diuretics can cause the hypotension. तो अगर आप डायरेटिक्स देते हैं, सपोज वन एल्डरली पेशेंट यू आर यूजिंग द डायरेटिक्स, उसको डिजीनेस हो सकता है while standing. The reason is hypotension, right? So these are due to electrolyte. Then the second is before that calcium also. Calcium. So there is loss of calcium. Remember the loop diuretics are losing the calcium. So calcium loss हो रहा है. Because of losing the calcium, you can say in kidney, in renal tubules, they are not reabsorbing the calcium, they are causing more loss of calcium. That's why they are used in the acute hypercalcemia. तो कैल्शियम लॉस कर रहे हैं, इसलिए हम हाइपरकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं उनको, राइट. देन कम्स टू द सेकंड. अब बैलेंस करना है तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सो रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, रिस्क ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, रिस्क ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, रिस्क ऑफ हाइपरयूरिसेमिया, यूरिक एसिड. अब देखिए रिस्की इन द गाउट पेशेंट. अगर गाउट पेशेंट की बात करें तो डायरेटिक्स उतने अच्छे नहीं है. रिस्की इन द डिसलिपिडेमिया. अगर डिसलिपिडेमिया पेशेंट्स की बात करें तो दे आर नॉट गुड. डिसलिपिडेमिया. देन डायबिटीज पेशेंट्स, राइट. सो वी नीड टू बी केयरफुल. देन कम्स टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ototoxicity. So I told कि there is risk of ototoxicity. Hearing loss. Hearing loss का रिस्क है, डेफिनेटली रिवर्सिबल है, बट रिस्क है. बट विद द डायरेटिक्स विच वी आर यूजिंग द रिस्क इज वेरी लेस. एथाक्रिनिक एसिड के साथ रिस्क था जो कि अभी यूज नहीं करते हैं. लूप डायरेटिक्स जो बाकी हम यूज कर रहे हैं, दे आर हैविंग वेरी लेस रिस्क, सो नो नीड टू वरी. देन मेल इंपॉर्टेंस. मेल इंपॉर्टेंस अगर रेगुलरली यूज करेंगे तो मेल इंपॉर्टेंस का रिस्क है यंगर पेशेंट्स में, आपको ध्यान रखना होगा. दैट्स वाई लॉन्ग टर्म यूज ऑफ डायरेटिक्स शुड बी अवॉइडेड इन द यंग पेशेंट. लेकिन हम तो लूप डायरेटिक्स कहाँ यूज कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, मोस्टली अक्यूट कंडीशंस में यूज कर रहे हैं. थायजाइड्स के साथ मेन रिस्क है बिकॉज थायजाइड्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म. तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा नॉट टू बी यूज्ड इन यंग अडल्ट मेल पेशेंट्स. इंपॉर्टेंस कर सकती है, लिबिडो कम कर सकती है, सो मेल इंपॉर्टेंस हो गया. सो these are the important side effect. And remember during pregnancy diuretics are not safe, so not to be used during pregnancy. प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, सेफ्टी प्रूव नहीं है प्रेगनेंसी में, तो डायरेटिक्स प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना है. प्लेसेंटल सर्कुलेशन को कम कर रहा है तो फीटल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, राइट. दैट इज द रीजन, बिकॉज डायरेटिक्स कॉजिंग फ्लूइड लॉस, वाटर लॉस, compromise the fetal circulation.
अगर फीटल सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होगा तो फिर फीटस को अफेक्ट आएगा, तो डोंट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दैट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द लूप डायरेटिक्स. तो हमने मैकेनिज्म पढ़ा, यूज पढ़े, साइड इफेक्ट पढ़े. देन कम्स टू thiazides. Important diuretic for hypertension, thiazides. In thiazides mechanism we have discussed. Then what are the thiazides? We have the hydrochlorothiazide. Hydrochlorothiazide. In short, it is called as HCT. Very important. Then we have chlorthalidone. Then bendroflumethiazide. Then indapamide. It is not exactly thiazide but thiazide like drug. सब कुछ सेम ही है, थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है. So hydrochlorothiazide, chlorthalidone, bendroflumethiazide, indapamide like drugs are thiazides or thiazide like drugs. Remember, in thiazides are longer and slower than loop diuretics. Thiazides are longer and slower than loop diuretics. Loop में हमने बताया था they are faster, these are slower. Loop is shorter, these are longer. If you talk about the efficacy, then thiazides are having medium efficacy. तो अभी चीज क्लियर हो गया कि loop diuretics are higher efficacy, thiazides are medium efficacy, the rest of the diuretics are low efficacy diuretics. Now comes to what are the use of thiazides. कहाँ यूज करना है thiazides को? So thiazides are used in the first important same edema. In the edema treatment we use the thiazides. Now depend करता है कि you need the faster drug, you need the longer purpose. So loop or thiazides can be used for that purpose. Then these are the first line drug in hypertension. In the essential hypertension, these are the first line drug. That is important. In elderly patient, thiazides are the choice of drug. So these are drug of choice in elderly patients, because in elderly patients there is hypertension with edema. Very good drug, thiazides. If there is atherosclerosis, if there is hardening, then vasodilators. If edema, then diuretics. If single best answer, then you can say it is a diuretic. Then the next important role of loop diuretics, these thiazides. In thiazides, the next important is in the calcium. What is the effect of thiazide? Thiazides are causing the calcium reabsorption. Loop causing loss of calcium. Thiazides are causing increased reabsorption. So decrease the calcium in the kidney. Because of that, these drugs are used to treat nephrolithiasis. Nephrolithiasis means renal stone formation, right? If one patient is having nephrolithiasis, so the role of diuretic, these are increasing the calcium reabsorption in the renal tubules, and because of that you can say these are decreasing the calcium stones in nephrons. So किडनी में कैल्शियम स्टोन्स को कम कर रहे हैं. So one patient who is having recurrent nephrolithiasis, you can give thiazides to decrease the chances of renal stone formation. Then because they increase the calcium reabsorption, increase the blood calcium level, these drugs can be used in osteoporosis. In osteoporosis, so one female who is osteoporotic female, postmenopausal female having hypertension, then these are the best drug, because they control the hypertension as well as they inhibit the risk of osteoporosis. So that is the advantage. After that,
The next important use, thiazides are also used in nephrogenic diabetes insipidus. We'll discuss in detail in the diabetes insipidus, but अगर यहाँ बात करें नेफ्रोजेनिक में, हाउ द thiazides are effective. So basically what happens when you give the thiazides in diabetes insipidus, already there is water loss. You give the thiazides, there will be more water loss. There will be more water loss initially. So it can flare up the problem. But जैसे ही water loss होना start हुआ, it trigger the kidney, and in kidney the compensatory mechanism start. Compensatory mechanism कहाँ start हुआ? Proximal kidney पे, proximal part नेफ्रॉन पे. जैसे ही water loss हुआ, water reabsorb होना start हो गया, compensatory increase in the water. So paradoxical effect हो रहा है तो ये डायूरेटिक, लेकिन वाटर लॉस करके नॉर्मल किडनी में, राइट, जहाँ पे इडीमा नहीं है, जहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर नहीं है, वहाँ पे अगर आप वाटर लॉस करेंगे तो बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे एंड दैट इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन. जैसे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ट्रीट हो गया, राइट. सो कंपनसेटरी, बिकॉज ऑफ वाटर लॉस, कंपनसेटरी इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन. तो जो वाटर परमिएबल एरिया है वहां से वाटर रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया बिकॉज इट इज कॉजिंग द वाटर लॉस. सो दीज आर द डिफरेंट यूज ऑफ thiazides, राइट. हाइपरटेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिमा में. अब बात करते हैं व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ thiazides. अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो आप सिंपली लिख सकते हैं सिमिलर टू लूप डायूरेटिक्स. कैसे साइड इफेक्ट है? सेम है जैसे लूप के हैं, एक्सेप्ट कैल्शियम, एक्सेप्ट द इफेक्ट ऑन द कैल्शियम. कैल्शियम को छोड़ दो, बाकी सब सेम है. thiazides आर कोजिंग, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ thiazides ऑन द कैल्शियम? सो thiazides आर कोजिंग कैल्शियम reabsorption, right? So you can say thiazides are causing hypercalcemia. Thiazides are causing hypercalcemia, right? वहां पे हमने पढ़ा था कि लूप डायरेटिक्स आर यूज्ड इन hypercalcemia. These are causing the hypercalcemia, right? So that is important about the thiazides. अब बात करते हैं द नेक्स्ट वन, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स. Potassium sparing diuretics. In potassium sparing diuretics we have the two. कौन सी हैं? In potassium sparing diuretic the first is we have the aldosterone antagonist. The first is aldosterone antagonist, जो कि एल्डोस्ट्रोन का एक्शन इनहिबिट कर दें. एल्डोस्ट्रोन एंटागोनिस्ट. In aldosterone antagonist we have spironolactone, right, important drug. We have the eplerenone. So spironolactone and eplerenone. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ eplerenone, व्हाई देयर इज नीड ऑफ eplerenone. spironolactone काफी अच्छी ड्रग थी, बट फिर भी eplerenone क्यों आया? बिकॉज eplerenone जो है, इसका एडवांटेज क्या है? नो रिस्क ऑफ गायनेकोमेस्टिया, नो रिस्क ऑफ गायनेकोमेस्टिया विद द eplerenone. इसका मतलब क्या हुआ? एंड्रोजन पे इफेक्ट नहीं है. स्पाइनोलैक्टोन का एंड्रोजन पे इफेक्ट है, कुछ फायदा भी है कुछ नुकसान भी है. नुकसान क्या है? गायनेकोमेस्टिया. तो eplerenone जो है इसमें नो रिस्क ऑफ गायनेकोमेस्टिया, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर किसी पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया का रिस्क है तो फिर eplerenone आप यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड हाउ इट इज यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड. तो कैसे काम करेगा और कहाँ यूज करेंगे? तो काम तो कर रहा है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे. एल्डोस्टेरोन कहाँ पे? रीनल ट्यूब्यूल्स के कलेक्टिंग डक्ट पे. अगर हम बात करें नेफ्रॉन के तो कलेक्टिंग डक्ट पे. कलेक्टिंग डक्ट पे एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सो व्हाट इज द एल्डोस्टेरोन एक्शन? एल्डोस्टेरोन एक्शन इज एल्डोस्टेरोन एक्शंस. क्या क्या एल्डोस्टेरोन के एक्शंस हैं इन द कलेक्टिंग डक्ट? एल्डोस्टेरोन कोजिंग
salt retention, sodium retention, aldosterone causing water retention, then aldosterone causing loss of potassium loss and H plus loss, यही काम है एल्डोस्ट्रोन का। दीज आर एल्डोस्ट्रोन एंटागोनिस्ट, तो कर दीजिए ब्लॉक दीज मैकेनिज्म। सो व्हाट हैपन्स, देयर इज सोडियम लॉस, देयर इज वाटर लॉस, सोडियम लॉस, वाटर लॉस, देयर इज रिटेंशन ऑफ पोटेशियम रिटेंशन and H plus retention. It means there will be acidosis. तब देखिए if you use the spironolactone this effect comes. अब अगर सोडियम लॉस है, वाटर लॉस है, तो you can say that there is diuretic effect. तो डायूरेटिक इफेक्ट आ रहा है, बट अगर हम डायूरेटिक इफेक्ट की बात करें तो माइल्ड है कि स्ट्रॉन्ग है। इफ इसे कि डायूरेटिक इफेक्ट आ रहा है तो इज इट माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द कलेक्टिंग डक्ट। कहाँ पे काम कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पे, वहां पे स्कोप ही लिमिटेड है, बहुत ही कम काम करने को मिल रहा है। सो दैट्स वाई इट इज माइल्ड डायूरेटिक, सो माइल्ड डायूरेटिक है ये। तो क्या इसको अकेले डायूरेटिक की तरह यूज करेंगे, नहीं। फायदा क्या है, पोटेशियम रिटेंशन, सो पोटेशियम स्पेयरिंग एंड एसिडोसिस। सो व्हाट इज द एडवांटेज वेयर वी आर यूजिंग दिस ड्रग, सो व्हाट आर द यूज ऑफ spironolactone? The first important use is it is given with loop और thiazides। साथ में दे दीजिए लूप और thiazides के, अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज करना है। उससे क्या फायदा होगा, the advantage is there is potassium balance and there is H plus balance and the diuretic effect increase, the diuresis increased। अब डायूरेटिक इफेक्ट तो ऐड हो गया, पोटेशियम अपोजिट था, H प्लस इफेक्ट अपोजिट था, तो एसिडोसिस एल्कलोसिस के चांसेस बैलेंस हो गए, हाइपरकैलेमिया के चांसेस बैलेंस हो गए और डायूरेसिस बढ़ गया। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड विद लूप एंड thiazides। अवॉइड द रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया, अवॉइड द रिस्क ऑफ एल्कलोसिस ड्यू टू लूप एंड thiazides। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। द सेकेंड, जहां पे लूप और thiazides रेजिस्टेंट हो गए वहां पे आप इसको ऐड कर सकते हो। सो इन द रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, आई टोल्ड यू इन द रेजिस्टेंट केसेज ऑफ हाइपरटेंशन, ये क्या करता है, उनके इफेक्ट को बढ़ा रहा है, तो इसलिए रेजिस्टेंट केस में आप यूज कर सकते हो। तो इन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन वी कैन ऐड द spironolactone। तीसरा, इन रेजिस्टेंट केसेज इट इज द बेस्ट ड्रग। द थर्ड इंपॉर्टेंट, इन द रेजिस्टेंट इडीमा ऑल्सो, like in the cirrhotic edema, in cirrhotic edema if we will use the loop or thiazides they are not very effective, the reason is cirrhosis, तो again you can use। अब आप कहो कि सर cirrhotic edema में इसका क्या रोल है, because in cirrhosis the aldosterone increase and because of hyperaldosteronism will be there। तो अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है तो सोल्ट रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, उसकी वजह से एडिमा हो रहा है। तो अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो कौन सा ड्रग बेस्ट रहेगा, देन डेफिनेटली टू ट्रीट द हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वी यूज द spironolactone। सो दैट्स व्हाई इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन, राइट। अब बात करें कि और कहाँ यूज कर सकते हैं, देन इट इज इंपॉर्टेंट ड्रग। अगर हाइपरटेंशन इडीमा की बात हो गया, देन इट इज इंपॉर्टेंट ड्रग इन द हार्ट फेलियर। इन द हार्ट फेलियर पेशेंट, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, इन द कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर पेशेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। क्या एडवांटेज है हार्ट फेलियर में, इन हार्ट फेलियर द एडवांटेज वन इज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट।
दोनों तरह से इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली भी हार्ट पे रिसेप्टर है और इनडायरेक्टली भी काम कर रहा है। दोनों मैकेनिज्म से इट डिक्रीज द रिमॉडलिंग इन द हार्ट, it decrease the remodeling in the heart and it decrease the mortality of heart। तो हार्ट फेलियर में मोर्टेलिटी कम कर रहा है, उसकी सेल्स की लाइफ इंक्रीज कर रहा है। डायरेक्टली इफेक्ट है कि फाइब्रोसिस नहीं होने दे रहा है मायोकार्डियम में, राइट, एपोप्टोटिक चेंजेस नहीं होने दे रहा है। इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि अगर वाटर रिटेंशन कम होगा, सोडियम रिटेंशन कम होगा तो रिमॉडलिंग कम होगा, हाइपरट्रॉफी कम होगा। तो दोनों तरह से इफेक्ट करके मोर्टेलिटी कम कर रहा है, तो इनका कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वी कैन यूज। देन बिकॉज इट इज हैविंग एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, बिकॉज ऑफ एंड्रोजन इनहिबिशन, बिकॉज ऑफ एंड्रोजन इनहिबिशन, इसको आप एंटी एंड्रोजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन द एक्ने, एक्ने जो हो रहा है फीमेल्स में उसको रोकेगा, एंड हिर्सुटिज्म को रोकेगा, राइट। सो इन एक्ने, हिर्सुटिज्म, इट कैन डिक्रीज द एंड्रोजन इफेक्ट। तो जैसे कि पीसीओडी का पेशेंट है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओएस, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं स्पानोलैक्टोन, बट एप्लिरोनोन नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ तो ये एडवांटेज है कि वो गायनेकोमेस्टिया नहीं कर रहा है, राइट। देन कम्स टू व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ स्पानोलैक्टोन। इन साइड इफेक्ट ऑफ स्पानोलैक्टोन कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। इन साइड इफेक्ट फर्स्ट, बिकॉज ऑफ एंड्रोजन इनहिबिशन, because of androgen inhibition definitely it can cause the gynecomastia, it can cause the gynecomastia। so risk of gynecomastia in the males, that is because of androgen। second, because it is causing potassium retention, so hyperkalemia। third, because H+, so it is causing acidosis। but because ये mild diuretic है तो कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। Then comes to the second potassium sparing, in that we have the epithelial sodium channel blockers, epithelial sodium channel blockers। in epithelial sodium channel blocker we have the amiloride and triamtrin, amiloride and triamtrin, these are epithelial sodium channel blockers। इफेक्ट वही कलेक्टिंग डक्ट पे है, इफेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट, एंड सेम these drugs are causing retention of potassium, so increase the potassium and retention of H+। so effect same है hyperkalemia and acidosis, यूज भी सेम होंगे। इट कैन बी कंबाइंड विद द लूप एंड थियाजाइड्स। सो इन द यूज ऑफ these drugs can again be used for with loop and thiazides, same just like spironolactone। out of this amiloride is important for nephrogenic diabetes insipidus, especially in the lithium induced nephrogenic diabetes insipidus, because it decrease the lithium induced ADH resistance। जो लिथियम ADH रेजिस्टेंस कर रही है ये उस रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, इसलिए इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, एंड द ड्रग फॉर दैट इज एमिलोराइड। बाकी तो इन ड्रग्स को आप एमिलोराइड, ट्राइमट्रिन को आप साथ में यूज करिए लूप और थायजाइड्स के, वो इनका मेन पर्पज, जस्ट लाइक स्पिरोनोलैक्टोन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डायूरेटिक्स। अब अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इन ऑल डायूरेटिक्स देयर आर टू वे टू एक्ट। पहला तो वे है कि यू गिव द डायूरेटिक्स, दे फिल्टर इन द किडनी
then through the urine, through the renal tubules, they are going out, and then through the luminal part, these are causing the effect. So through the luminal side, these drugs are causing the action, luminal side. And the second is, so action through the luminal side. The second is, these drugs are having the effect through the interstitial side, राइट। दो जगह से काम हो सकता है, दो जगह से एक्शन हो सकते हैं डायूरेटिक्स के। सपोज करो कि ये आपका नेफ्रॉन है, राइट, ये रीनल ट्यूब्यूल है, तो ड्रग इधर से पास हो रही है, और जब ड्रग इधर से पास हो रही है तो यहीं पे इसने एक्शन किया। सो ये तो हो गया ल्यूमिनल साइट। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इधर से आपने कोई ड्रग दिया और वो थ्रू द ब्लड वेसल्स जो है आपके इधर सेल्स पे जो है इंटरस्टिशियल सेल्स है, इधर आया, तो एक्स्ट्रा ल्यूमेन मीन्स इंटरस्टिशियल साइट, तो ये आपका इंटरस्टिशियम हो गया, इंटरस्टिशियम, और ये आपका हो गया ल्यूमेन, ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल साइड है और इंटरस्टिशियम साइड है। तो कौन सी ड्रग किधर से काम करेगी इन डायूरेटिक्स, तो इन इंटरस्टिशियल साइड ओनली वन, एंड विच इज दैट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, दैट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। बाकी जितनी भी हैं, वेदर इट इज लूप और thiazides और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, rest of the all they are acting through the luminal side, through the interstitium side aldosterone act. So this is about the all we have discussed about the diuretics.